ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੰਦ ਪਾ ਦੇਣ। ਮੁਸਾਫਾ ਦੀ ਅਰਜੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ 12 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਇਹ नहीं ड्यूटी ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਤੇ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ क्यों नहीं कंप्लेंट करते, क्यों नहीं ਇਹਦੀ ਐਬਸੈਂਟ ਲਾਉਂਦੇ? सिविल अस्पताल पठानकोट में आज उस समय माहौल गर्मा गया जब अपनी ड्यूटी पर समय पर मानसिक रोग की डॉक्टर के अपने सीट पर न बैठे जाने को लेकर शिवसेना के पंजाब प्रदेशाध्यक्ष योगराज शर्मा व अन्य लोगों की ओर से अपना रोष जाहिर किया गया। अस्पताल में मानसिक रोग के डॉक्टर से इलाज करवाने आए लोग काफ़ी समय तक सुबह उनका इंतजार करते रहे, परंतु काफ़ी इंतजार करने के बाद डॉक्टर के न आने पर परेशान लोगों ने वहां अपना रोष प्रकट करना शुरू कर दिया। मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास काम के लिए आए शिवसेना प्रदेशाध्यक्ष योगराज शर्मा ने भी काफ़ी समय तक डॉक्टर का इंतजार किया और उन्हें बार बार फ़ोन भी किए, लेकिन उसके बाद जब काफ़ी समय देकर डॉक्टर अपने कैबिन में ना आई तो उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि सरकार से वेतन लेने वाले डॉक्टर मरीजों को लंबे समय तक इंतज़ार करवा रहे हैं और आज यहाँ मानसिक रोग का इलाज करवाने वाले मरीज भी परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर का फर्ज बनता है कि वह अपनी ड्यूटी पर सुबह समय पर आए और मरीजों की जांच करें, लेकिन आज उन्होंने देखा है कि मानसिक रोग विशेषज्ञ अपने कैबिन में मौजूद नहीं थी और काफ़ी समय के इंतजार के बाद भी वह यहाँ नहीं आई, जिससे वहाँ खड़े मरीजों को परेशान होता देख उन्होंने सिविल अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर भूपिंदर सिंह से भी संपर्क साधा। इसका कारण पूछा, लेकिन उनसे भी उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। और वहीं इस संबंधी जब मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनिया मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वह आज सरकारी काम के लिए कोर्ट गई हुई थी, जहां उन्हें समय लगा। इसके अलावा जब उनकी इमरजेंसी में ड्यूटी लगाई जाती है तो इससे उनके मरीजों को इंतजार करना पड़ता है, परंतु इन लोगों को समझना चाहिए कि डॉक्टरों को और भी अन्य काम होते हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को इस बात से समस्या है तो वह सरकार से मांग करें कि अस्पताल में मानसिक रोग के 2 डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जाए, ताकि एक को अन्य सरकारी काम के लिए जाने के बाद दूसरा मरीजों की जांच कर सके। ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਣਾ ਕਿੰਨੇ। ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਕੇ 9 ਵਜੇ 9:30 ਵਜੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਟੇਬਲ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅੰਦਰ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਉਣ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਣ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਬਸੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਐਡ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਸਪੀਟਲ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਾਰ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਰਿਆਵਾਂ ਪਾਰ ਆ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਗੇ? ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਤੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢੂੰਗਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਟੇਬਲਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਫਿਸ ਬੈਠਾ, 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ 9 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੇਬਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ? ਔਰ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਪਾਈ ਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅੰਦਰ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਚੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਟੇਬਲ ਤੇ। शमशेर सिंह नाम मेरा जी। सवेर के आए डॉक्टर अजे तक नहीं आए इतने। मैं पिछले हफ्ते भी वेट करके गए, 5 नंबर की दवाई लिखा के गए टैंपररी, 4 नंबर डॉक्टर अजे तक नहीं बैठे। हाँ चाहते भी सवेरे अपने डॉक्टर टाइम सिर आए, 9 बजे आए, पूरी ड्यूटी ला के जाए अपनी। देखिए, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, एक डी एडिक्शन इंचार्ज हूँ, एक मेडिकल ऑफिसर हूँ, एक डेथ बर्थ सर्टिफिकेट की इंचार्ज हूँ, इमरजेंसी में भी मरीज़ देखती हूँ, वार्ड में भी देखती हूँ, सेशन जज के पास में भी जाती हूँ, डीसी ऑफिस भी मीटिंग पे जाती हूँ, चिंतपूर्णी भी गई हूँ, कोरोना की ड्यूटी भी लग गई हुई है। तो एक डॉक्टर 40 जगह काम कैसे कर सकता है, आप लोग बताइए।
एक इंसान से अगर आप इतने सारे काम लोगे तो वो एक जगह तो टिक के बैठ नहीं सकता। अगर मुझे सुबह आके डी एडिक्शन सेंटर में वार्ड लेना है, जो मेरे मरीज़ दाखिल हैं उनके पास कौन जाएगा? मैं ही जाऊँगी। अगर मुझे इमरजेंसी में कोई रात का मरीज़ दाखिल है उसको देखने जाना है तो मुझे ही जाना है। तो ये जो सुबह वेट करके गए हैं तो इनको बोलो कि एक डॉक्टर या तो ये 3 डॉक्टर रखें। सरकार को चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पे इतनी दुनिया भर के मरीज़ आते हैं, यहाँ पे कम से कम 2 डॉक्टर तो रखें जो डी एडिक्शन संभाले। अब मानसिक रोगों की ओपीडी अलग होती है, उनको भी देखना है। नशा छुड़ाव की ओपीडी अलग होती है, उधर डी एडिक्शन में उनको भी देखना है। उधर ओएसटी सेंटर की ओपीडी उधर भी देखना है। तो इतने सारे काम। इसके अलावा अगर कैंप होता है तो उस कैंप में भी जाना है। अगर मुझे पेरिफेरी में जाके वहाँ पे यूनिट लगानी है, वहाँ पे हमारा नरोट जैमल सिंह में सेंटर है, वहाँ भी जाना है। कहीं ना कहीं ड्यूटीज़ तो हमारी लगी होती हैं और हम किसी काम में ना नहीं कर सकते। किसी भी मरीज़ को मैंने आज तक, पिछले 9 साल 10 साल हो गए मुझे यहाँ पे, किसी मरीज़ को मैंने ना नहीं करे। और आज तक कोई मेरा मरीज़, कोई या तो कोई बीमार हुआ हो या कोई डेथ हुई हो, कोई शिकायत आई है? कुछ नहीं आई। लेकिन सरकार को ये भी तो समझना चाहिए कि ये भी बेचारे डॉक्टर हैं, इनके भी 2 ही हाथ हैं, मेरे 15 हाथ तो है नहीं। तो 2 हाथों से मैं 40 काम नहीं कर सकती। तो ये जो आज सुबह योगराज शर्मा जी ने बोला है कि सरकार को चाहिए यहाँ पे और डॉक्टर रखना, है बिल्कुल सही बोला है, मैं इनसे इस फेवर में हूँ। लेकिन अगर ये बोले कि डॉक्टर 9 बजे से इस कुर्सी पर चिपक के बैठ जाए और 3 बजे तक चिपक के बैठा रहे, तो फिर मुझे बाकी जगहों पे काम के लिए क्यों भेजा जाता है? मुझे क्यों बोला जाता है कि सेशन जज ने आपको 12 बजे बुलाया, आपको पहुंचना है? मुझे क्यों बोला जाता है डीसी दफ्तर 10 बजे मीटिंग, आपने डीसी दफ्तर जाना है? मुझे क्यों बोला जाता है कि आज वहाँ पे कैंप लगा, आपने कैंप में मॉडल टाउन जाना है? ये सब काम, जो एक्स्ट्रा काम आप हमसे लेते हो, ये सब काम बंद कर दो। मुझे नहीं बोला हो कि इमरजेंसी में मरीज आए जल्दी जाके देखिए, मुझे नहीं बोले कि डी एडिक्शन सेंटर में मरीज है वहाँ जाइए। एक इंसान से आप इतने सारे काम जब आप ले रहे हो तो उस इंसान को आप बोल दो ना कि भाई इतने दिन आपने यहाँ बैठना है, इतने दिन वार्ड में बैठना है, इतने दिन ओपीडी वहाँ करनी है। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं सारा टाइम यहीं चिपक के बैठी रहूँ तो ये नहीं हो सकता। अगर आप मुझे बाकी काम दोगे तो मुझे बाकी काम करने भी जाना पड़ेगा। जैसे कि आज सुबह मैं गई थी कोर्ट में, हमारी कोर्ट में हाजिरी होती है तो कोर्ट में 2-2 घंटे जज साहब बिठा के रखते हैं। जब मैं कोर्ट में वहाँ जाती हूँ तो यहाँ पे मरीज मेरे सफ़र होते हैं। इसी तरीके से जिस दिन इमरजेंसी में मेरी ड्यूटी लगी होती है, इमरजेंसी में मरीज देखने जाती हूँ, यहाँ पे मरीज सफ़र होते हैं। तो इन लोगों को भी समझना चाहिए कि डॉक्टर इंसान एक है और डॉक्टर को 36 जगह काम है, इसलिए वो डॉक्टर बना है। डॉक्टर किसी को भी मना नहीं कर सकता काम करने के लिए। मैं मरीज भी देखती हूँ, मैं वार्ड भी देखती हूँ, मैं ओपीडी भी देखती हूँ, मैं इंडोर भी देखती हूँ। और अब मेरे को देखो मेल आई है, मुझे लेटर बना के भेजनी है आज दोपहर तक कि कितने मरीज इस साल में एडमिट हुए हैं, कितने डी एडिक्शन मेंटल हेल्थ की रिपोर्ट है, वो भी बनानी है। और उसके लिए मुझे रिपोर्ट लेने अंदर इंडोर में जाना होगा। तो अगर कोई मरीज आया है और अगर डॉक्टर फ़ोन पे बोल रहा है कि हाँ जी प्लीज़ वेट, मैं आई एम कमिंग, तो अगर मैं आ रही हूँ, जहाँ से भी आ रही हूँ, तो काइंडली थोड़ी सी पेशेंस रखिए। मैं मानसिक रोगों का इलाज करती हूँ, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ। मुझे इतना मजबूर मत करिए कि मैं खुद ही मानसिक रोगी बन जाऊँ। अगर मैं आपका इलाज कर रही हूँ तो आप समझिए कि डॉक्टर भी एक इंसान है। डॉक्टर कोई हवाई जहाज से तो नहीं आता, आपको वेट करना है। और डॉक्टर एक जगह में एक जगह काम कर सकता है। अगर मैं आपका इंटरव्यू दे रही हूँ और वहाँ पे इमरजेंसी में मरीज बुला रहा है तो मैं वहाँ भाग के कैसे चली जाऊँ? एक जगह में एक ही काम हो सकता है। जब जनानी खाना बना रही है तो कपड़े थोड़ी धो सकती है साथ में, एक बार में एक काम होता है। तो योगराज जी जो भी आए थे सुबह, मैं उनसे हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहती हूँ कि सरकार को बोलिए कि यहाँ पे कम से कम 2 डॉक्टर तो तैनात कर दे, जो जिस दिन मैं यहाँ पर ना बैठूँ मेरी जगह कोई और डॉक्टर बैठे। और 9 बजे से लेकर 3 बजे तक तो चिपक के कोई डॉक्टर यहाँ नहीं बैठता। अगर जिसको ऑपरेशन करने जाना है वो तो ऑपरेशन करेगा, फिर नीचे ओपीडी में मरीज वेट करते हैं। जिसको इमरजेंसी में जाना है इमरजेंसी देखेगा, नीचे ओपीडी में मरीज वेट करते हैं। तो काइंडली, मेरा फ़ोन ऑन है, कोई मेरा फ़ोन स्विच ऑफ नहीं है। रात के 2-2 बजे मरीजों के फ़ोन आते हैं और मैं 2-2 बजे देखती भी हूँ। किसी मरीज़ को आज तक मैंने मना नहीं किया कि मैं नहीं देखूंगी। हर मरीज़ को देखती हूँ, हर मरीज़ का इलाज करती हूँ। कोई मरीज़ आज तक मेरी डेट में बताओ जो मर गया हो। बाकी अस्पतालों में जो होता है मेरे साथ कभी नहीं होता। मेरे मरीज़ सेटिस्फाई होके ही जाते हैं। तो एटलीस्ट मेरे हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि हैव पेशेंस, सब्र करो। सब्र नहीं कर सकते तो मेरी जगह 2 डॉक्टर और मेरे साथ बैठा दो जो मेरा हाथ बटाएं। लेकिन इतना सारा काम मेरे ऊपर प्लीज़ मत डालिए, नहीं तो मैं ही कहीं परेशान ना हो जाऊँ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਸੈਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।